Good morning, students. In the previous class, we have studied about the last two rulers of Mamluk or slave dynasty, and we have also studied about the Khilji dynasty. Today, we are going to start the Tughlaq dynasty. Okay? The Tughlaq dynasty, a case study. Ghiyasuddin Tughlaq, 1320 to 25 CE. Alauddin Khilji died in 1316 CE. His death followed by a brief period of political unrest. In 1320, the last Khilji ruler, Khusro Khan, was killed by Ghiyasuddin Tughlaq. An able statesman and administrator, Ghiyasuddin Tughlaq laid the foundation of a new dynasty called the Tughlaq dynasty. He believed that the state should be based on the support of the people. अलाउद्दीन खिलजी की डेथ जो है 1316 CE में हो गई थी। उसकी डेथ के बाद थोड़े टाइम तक जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट था। 1320 में जो है लास्ट खिलजी रूलर जो थे खुसरो खान, उनको किल कर दिया था गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक एक एबल स्टेट्समैन और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसने लेड किया था फाउंडेशन न्यू डायनेस्टी को, जिसे हम तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। उसका ये मानना था कि स्टेट जो है वो बेस्ड होना चाहिए सपोर्ट ऑफ द पीपल, मीन्स लोगों के सपोर्ट पे बेस्ड होना चाहिए। He carried out many works of public utility and also built the famous Tughlaqabad fort in Delhi. He died in 1324 CE. He was succeeded by his son Jona Khan, who assumed the name Muhammad bin Tughlaq after becoming the Sultan. गियासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारा काम किया था पब्लिक यूटिलिटी में, और साथ ही साथ इसने बिल्ड कराया था फेमस तुगलकाबाद फोर्ट जो कि दिल्ली में है। गियासुद्दीन तुगलक की डेथ 1324 CE में हो गई थी। उसके बाद जो उनका जो बेटा था जौना खान, जिसने बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का नेम ले लिया था सुल्तान बनने के बाद, वो थ्रोन पे बैठा। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 51 CE. Muhammad bin Tughlaq was a very learned man. He was well versed in Sanskrit, Arabic, and Persian. He also had a good command over religion, philosophy, science, and literature. He tried to resolve disputes through secular measures. He undertook numerous experimental projects. Despite being innovative, though these projects failed since they lacked prudence. मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 CE तक रूल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही लर्न मैन था। उन्हें बहुत अच्छे से संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन आती थी। उनको एक गुड कमांड था अपने रिलीजन, फ़िलासफ़ी, साइंस और लिटरेचर में। इन्होंने ट्राई किया था कि वो रिजॉल्व कर सकें डिस्प्यूट्स को सेकुलर मेजर्स की हेल्प से। उन्होंने न्यूमरस जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स भी किए थे। डिस्पाइट वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थे, इसके बावजूद जो है इनके प्रोजेक्ट्स फेल हो गए थे क्योंकि ये प्रूडेंस को लैक कर रहे थे। Muhammad bin Tughlaq's empire included the southern states, present-day Orissa, Bengal, and the Deccan. Shortly after his accession to the throne, he decided to transfer the capital from Delhi to Devagiri, renamed Daulatabad in the Deccan. Due to the central location of Devagiri, the Sultan thought it would enable him to exercise control throughout the country and protect the Sultanate against continuous Mongol attack. Historians think that he ordered not only the transfer of his court and officials but the entire population. Extensive arrangements were made for the long journey that covered a distance of around 1500 km. Temporary shelters were set up along the way and free food and drinks were supplied. Nevertheless, many peoples did not survive the long and arduous journey, and the operation turned out to be a total failure. As his ministers, courtiers, and soldiers were not mean to stay at the new location, Muhammad bin Tughlaq ordered their return to Delhi. मोहम्मद बिन तुगलक के एम्पायर में साउदर्न स्टेट्स, प्रेजेंट डे उड़ीसा, बंगाल और डेक्कन थे। शॉर्टली उनके एक्सेशन के बाद जब वो थ्रोन पे बैठ गए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैपिटल को शिफ्ट करेंगे दिल्ली से देवगिरी, जिसे बाद में दौलताबाद रीनेम कर दिया गया था डेक्कन में। क्योंकि देवगिरी की लोकेशन जो है वो सेंट्रल लोकेशन थी, तो सुल्तान ने ऐसा सोचा कि ये जो है उन्हें एक कंट्रोल मिल जाएगा पूरी कंट्री पे, और साथ ही साथ वो सल्तनत को प्रोटेक्ट कर पाएंगे जो कंटिन्यूस मंगोल अटैक हो रहा है उससे। हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑर्डर दिया था अपने कोर्ट और उनके ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र होने के लिए, और साथ ही साथ पूरे पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा लार्ज पैमाने पे जो है वो अरेंजमेंट्स हुए थे, क्योंकि जो लार्ज जर्नी कवर करनी थी, डिस्टेंस 1500 किलोमीटर की, 1500 किलोमीटर की लार्ज जर्नी को कवर करना था। टेम्पररी शेल्टर्स को सेट किया गया था रास्ते में, और साथ ही साथ फ्री फूड और ड्रिंक की भी सप्लाई हुई थी। बट बहुत से ऐसे लोग थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए थे इस लॉन्ग और ऑर्डर्स जर्नी को, और ऑपरेशन पूरी तरह से फेल्योर हो गया था। ठीक है,
चूँकि ये जो जर्नी थी काफ़ी लंबी थी इसी वजह से, और जो मिनिस्टर्स थे और कोर्टियर्स और सोल्जर्स थे वो नए लोकेशन पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नीड नहीं थे, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं आई न्यू लोकेशन, वो बहुत इच्छुक नहीं थे। इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑर्डर दिया कि वो सारे जो है वापस से दिल्ली रिटर्न हो जाएंगे। Another daring experiment undertaken by Muhammad bin Tughlaq was the issuing of bronze and copper token currency. This measure aimed to overcome the financial crisis owing to the drain of the royal treasury as a result of his scheme. Such coins had the same value as the gold and silver coins known as taka. People were encouraged to use them in their transactions. Soon new coins began to be forged at an alarming rate and all the token currency had to be withdrawn from the market. Muhammad bin Tughlaq also increased the land tax in the Ganga-Yamuna Doab region in order to meet the expenses of the army. Unfortunately, this measure was taken at a time when the region was passing through a famine, so the peasants of the region strongly opposed it. अदर डेयरिंग एक्सपेरिमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, उन्होंने इशू कराई थी ब्रॉन्ज और कॉपर की टोकर करेंसी को। इन्होंने इसे इसलिए मतलब इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया था क्योंकि उनका एम ये था कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, जो ड्रेन हो रहा है लॉयल ट्रेजरी का, उसकी वजह से जो है उन्होंने इसको ओवरकम करने के लिए किया था। ये कॉइन्स की सेम वैल्यू थी जैसे गोल्ड और सिल्वर कॉइन जिन्हें टका बोलते थे। पीपल को एनकरेज किया गया कि आप इन्हें यूज़ करें अपने ट्रांजैक्शंस में। तो उसके बाद क्या हुआ कि नए कॉइन्स बनने शुरू हो गए बहुत ही तेज़ी से, और जितनी भी टोकन करेंसी थी उसको मार्केट से हटाना पड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इंक्रीज़ किया था लैंड टैक्स गंगा यमुना दोआब रीजन में, जिससे कि वो अपने आर्मी के जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने जब ये स्कीम ली थी तो उस टाइम पे वो उस रीजन में जो है वो सूखा पड़ा हुआ था, फेमीन था वहाँ पे। सो वहाँ के जो किसान थे वो उन्होंने उस रीजन के किसानों ने इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज किया था। फिरोज शाह तुगलक 1351 to 88 CE. So Firoz Shah Tughlaq was the next emperor or next sultan after Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq died in 1351 and was succeeded by his cousin Firoz Shah Tughlaq. He aimed to consolidate his empire and took a number of measures to reform the administration. He undertook many welfare measures such as banning the practice of inhuman punishments, establishment of hospitals for the poor, etc. Firoz founded the city of Firozabad. People were happy during his reign. When he died in 1388, a series of rebellions broke out which hastened the end of the Tughlaq rule. मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ जो है वो 1351 में हुई थी, और उनके बाद उनके कज़िन फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है वो नए सुल्तान बने। इन्होंने कंसोलिडेट किया था अपने एम्पायर को और बहुत सारे मेजर्स लिए थे कि जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो रिफॉर्म कर सकें। उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए थे और साथ ही साथ बैन किया था जो इनह्यूमन पनिशमेंट था उनकी प्रैक्टिस को। इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था हॉस्पिटल्स पुअर्स के लिए, और भी बहुत सारे काम किए थे। फ़िरोज़ ने एक सिटी फाउंड की थी जिसका नाम था फ़िरोज़ाबाद। लोग जो थे उनके रीन में मतलब उनके शासनकाल में लोग बहुत खुश थे। इनकी जब डेथ हुई 1388 में तो उसके बाद बहुत सारा जो है बगावत मतलब रिबेलियंस ब्रोकआउट हो गए थे, जिसने तेज़ी से जो है वो तुगलक रूल को एंड कर दिया था। तिमूर्स इन्वेजन क्या है कि चूँकि दिल्ली सल्तनत बहुत वीक था तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया था एक्सटर्नल इन्वेजन्स को। तिमूर जो कि रूलर था समरकंद का सेंट्रल एशिया में और फाउंडर था तिमूरिड डायनेस्टी का, उसने इंडिया को इन्वेड किया 1398 में। इसकी आर्मी ने जो है वो दिल्ली को प्लंडर्ड किया और जो भी इनॉर्मस बूटी और मेनी इंडियन आर्टिसंस थे उन्हें वो लेके चले गए। जो लास्ट तुगलक रूलर था नसरुद्दीन, वो अनएबल था कि वो इन इन्वेडर्स को रोक सके। ओके, that's it for today's class. Thank you.